Good morning, students. In last video we have discussed about we have started about Ohm's law and we have discussed resistance in detail, both mathematically and physically. So we are going to start Ohm's law. I have started that in my last video, so let us continue with that. So Ohm's law was V is directly proportional to I. यहाँ तक हमने कर लिया था और मैंने आपको ये बताया था कि ये और ये दोनों ही करेक्ट हैं. थ्योरेटिकली ये करेक्ट हैं, पर अगर टेक्निकली देखें तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. वाई दिस इज सो? बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पोटेंशियल इज directly proportional to current, and here we are talking about that current is proportional to potential. अगर ऐसे देखें हम इसको तो ये क्या दिख रहा है कि जितना आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो उतना ही करंट है, और करंट कितना फ्लो किया सर्किट में जितना आपने पोटेंशियल अप्लाई किया. तो इस तरह से ये दोनों ठीक हैं. पर गलत क्या है कि करंट का फ्लो करेगा व्हेन देयर इज पोटेंशियल. सो पोटेंशियल इज द कॉज टू फ्लो करंट. तो करंट एक कॉन्सिक्वेंस है और पोटेंशियल एक कॉज है. तो कॉज पहले लिखा जाता है और उसका कॉन्सिक्वेंस बाद में लिखा जाता है. तो यहाँ पर हमने कॉन्सिक्वेंस पहले लिख दिया और कॉज बाद में लिख दिया. तो ये गलत है कि आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे तभी करंट यहाँ पर आएगा. तो इसीलिए इस पार्ट को, इस एक्सप्लेनेशन को हम करेक्ट मानते हैं, ना कि हम इस एक्सप्लेनेशन को. सो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट कि इफ़ physical conditions like temperature etc. are kept constant, then potential difference applied across any conductor is directly proportional to current. So since this is single power of I, this is I, not I square or I cube that I have discussed earlier also. So this makes the relation between V and I as linear relation. Linear means whenever you plot reading between I and V, you will get a line like straight line inclined to x-axis, or straight line graph you will get. So Ohm's law is a linear law. It is a linear relation. It is a linear formula. So I am repeating it once again कि Ohm's law states that कि potential difference applied across any conductor, जितना आप potential difference apply कर रहे हो वो प्रोपोर्शनल है करंट के. उतना ही करंट फ्लो करेगा सर्किट में, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर या और अदर फिजिकल कंडीशंस आपने कांस्टेंट कर दिए हैं. क्योंकि टेम्परेचर इफ़ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग देन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स और बिहेवियर ऑफ सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कीप ऑन changing. Like for semiconductors and non-metals or insulators, sometimes we see that conductivity changes. The pattern of their conduction of electricity keeps on changing, keeps on varying when you change when you change temperature. So we have to take care of physical conditions. These physical conditions should be always kept constant. So now come to the graph part. If we are going to plot graph between I and V or V and I, you will get readings are the same that we have discussed earlier in my previous table. Readings I have kept constant. Only axis I have changed. Here on Y axis I have used I, and here on Y axis I have used V. I have reversed the readings. So you are going to obtain a straight line inclined to, झुकी हुई लाइन मिलेगी आपको towards X axis. दोनों ही केसेस में यही लाइन होगी. तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ग्राफ लीनियर है. जो आपका रिलेशन है वी और आई के बीच में वो लीनियर है. नाउ यू नो दैट कि इफ़ वी आर गोइंग टू डील विद दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन देन इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स. फिजिक्स ही है वो. उसको मैथ्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड पुट एनी कॉन्स्टेंट बाय इंसर्टिंग एन इक्वल टू साइन. And this constant is here called as resistance, and from this formula R equals to V by I. So Ohm's law is not this. Ohm's law ये नहीं है कि डायरेक्टली आप लिख दो V equals to IR. अगर एग्ज़ाम में कोई फिज़िक्स वाला टीचर पेपर चेक करेगा तो V equals to IR को अगर आप Ohm's law लिखते हो तो वो गलत है. ये सिर्फ क्या दे रहा है आपको, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मिल रही है यहाँ से, सिर्फ V और I. एक्चुअली ओम्स लॉ ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी है इन दोनों के बीच में और फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट. सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट दीज टू थिंग्स. तो अगर आप डायरेक्ट ये लिख रहे हो तो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट ओम्स लॉ. ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्लेनेशन है. हालांकि ये निकला इसी में से ही है, बट वी कांट कंसिडर इट एज एन ओम्स लॉ. ओम्स लॉ नहीं माना जाएगा ये. सो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, V by I.
जो हमने यहाँ पे भी पहले डिस्कस करी थी। तो R एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, जो कि क्या था, V/I। तो हमने ओम्स लॉ को बाद में पढ़ा, रेजिस्टेंस हमने पहले पढ़ लिया था ताकि उसको डिफाइन किया जा सके। नेक्स्ट है उसके बाद कि अब हम ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ओम्स लॉ का, और इस ओम्स लॉ के ग्राफ से अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो आप उस रेजिस्टेंस को कैसे निकालोगे। तो हमने रीडिंग्स प्लॉट करी I और V के बीच में, और सिमिलरली मैंने यहाँ रीडिंग्स प्लॉट करी हैं V और I के बीच में। सेम वही ग्राफ है दोनों केसेस में। और अब हम ग्राफिकली यूज़ करते हैं R की वैल्यू निकालना। तो स्लोप क्या है इस क्वांटिटी की, स्लोप मतलब ये एंगल, दिस एंगल, सपोज थीटा इज़ दिस एंगल। तो दिस एंगल डिटरमाइंस द स्लोप, कि ये लाइन कितनी झुकी हुई है, कितनी इंक्लाइंड है ऑन एक्स एक्सिस। तो दिस स्लोप, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ है कि स्लोप के दो फॉर्मूलेज होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में करा था कि एक तो ये एंगल डिटरमाइन करता है स्लोप, ये लाइन कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और एक और फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। समटाइम्स स्टूडेंट राइट इट एज वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को डिवाइड नहीं करना है, जो उनके ऊपर क्वांटिटीज़ हैं दैट शुड बी डिवाइडेड, सो टेक केयर ऑफ दैट। So quantity on y-axis is I and quantity on x-axis is V. So slope of this graph is I by V and V equals to IR. So I by V becomes equal to 1 by R. तो अगर आप 1 by V I और V का ग्राफ प्लॉट करते हो इस तरह से, तो आपको 1 by R की वैल्यूज़ मिलेंगी। और इस केस में V और I का ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हो तो क्वांटिटी ऑन y एक्सिस क्या है, वोल्टेज, और क्वांटिटी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस क्या है, करंट। तो स्लोप इक्वल्स टू V बाय I इक्वल्स टू R। तो स्लोप दोनों ग्राफ की आपको, या कोई भी ग्राफ हो, अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है तो सिंपली यू पुट द वैल्यूज़ ऑफ क्वांटिटी ऑन y एंड क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, देन डिवाइड दैट एंड यू विल गेट द स्लोप एंड डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी यू कैन obtain. For example, if I am going to plot a graph for distance and time, I am repeating this thing again that you have done in 9th standard, कि slope of this graph will be equal to, slope equals to, this is slope equals to d by t, distance by time, that is equals to speed. तो slope of distance time graph will give you the speed. तो similarly slope of this graph is going to give you r, and slope of IV graph will give you 1 बाय आर इनवर्स। क्यों आपने एक्सेस रिवर्स कर दी है तो वैल्यू भी, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। नाउ सी दिस अ सिंपल रिलेशन, हाउ टू मेमोराइज Ohm's law and how to find the values of I, V and R. Though it's a very simple relation, still sometimes student commit mistakes कि V equals to IR है या फिर V equals to I by R है या क्या है। तो उसके लिए एक ट्राइंगल रिलेशन है ये। V और IR को आप इस तरह से लिख दो। अगर आपने V निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए। अगर आपने I निकालना है तो जिसको निकालना है उसको सर्कल में कर दो। V और R किस में दिख रहे हैं, डिवीजन में दिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर R निकालना है, जिसको निकालना है उसको सर्कल में डाल दो, V और I दिख रहे हैं।